Welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion, and we will be revising the concepts of the chapter through MCQs. Topic for this lecture is electrochemistry. Before we start with the questions, make sure you subscribe to the channel. It will help you to get more videos on MCQs, and you can revise the topic thoroughly. All right. So in the previous lecture already on electrochemistry, we have taken up some 22 questions. I mean to say the concept of equivalent conductance, molar conductance, specific conductance were discussed. Apart from that, you have taken up questions on the EMF series, oxidizing nature, reducing nature, how to find out from the EMF values, calculation of E naught of a cell. If E naught of 2 or 3 cells are given, how to compare them. And apart from that, we have taken up the questions on Faraday laws also, few questions. And now in this lecture, we will be starting with question number 23. I mean to say 23rd to 45 questions will be discussed here in this lecture. And the main stress will be on the galvanic cell, calculation of EMF in the Nernst equation, and then calculation of equilibrium constant. Even the equilibrium constant K is calculated from the conductance values, and degree of dissociation is calculated from the conductance values. What are the products of electrolysis at anode and cathode in the electrolytic cell, and how many Faraday of electricity is required for the given change of chemical changes to be calculated with the help of oxidation number. How many electrons are lost or how many electrons are gained, you can find out with the help of oxidation number, and hence you can calculate the amount of electricity required. Got it? So let's start with the questions. Question 23rd now. When 0.1 mole MnO42 negative is oxidized, the quantity of electricity required to oxidize MnO42 negative to MnO4 single negative is, you are given MnO4 2 negative, इसको बोला जाता है मैंगनेट आयन. This is called as manganate ion, and MnO4 single negative is called as परमैंगनेट आयन. एक है मैंगनेट और दूसरा है परमैंगनेट. ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे मैंगनीज का 7 आएगा. आप चेक कर सकते हो. MnO4 2 नेगेटिव मीन्स x ले लेते हैं हम इसके लिए. x plus 4 into -2 is equal to -2, hence x is equal to 6. Likewise आप दूसरे का भी कैलकुलेट करोगे तो 7 आएगा. इट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो MnO4 2 नेगेटिव जो है +6 वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +7 में कन्वर्ट हो जाता है. वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन है. तो 0.1 मोल इज गिवन टू अस. 0.1 मोल हमें दिया है. So can I say 1 electron is required means 1 mole of MnO4 2 negative requires 1 mole of electrons. Do you agree? एक पर मैंगनेट बनेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, पर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 1 मोल पर मैंगनेट बन जाएगा. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वैल्यू मोल का 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 96500 कूलम. इसी को 1 फैराडे बोला जाता है. तो ये चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. कैन आई से नाउ 1 मोल ऑफ MnO4 2 negative loses 1 mole of electrons. ठीक है, कहने का मतलब इसके इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए? 96500 कूलम. ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ना, 96500 कूलम. तो इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल के लिए. 0.1 मोल will require electricity. How much? Requires electricity equal to 96500 multiplied by 0.1. You will get
9650 कूलम। तो कूलम में आंसर चाहिए तो 9650, अगर फैराडे में आंसर चाहिए तो फिर 0.1 फैराडे आएगा, बट हमारी सारी ऑप्शंस कूलम में है। एज अ रिजल्ट आपका आंसर है ऑप्शन सी, 96500 कूलम इज योर आंसर, नॉट डबल जीरो, सिंगल जीरो, 9650, क्योंकि 1 मोल नहीं, आपको 0.1 मोल सैंपल गिवन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन फैराडे लॉ के ऊपर था। नेक्स्ट है अगेन ऑन द फैराडे लॉ। Weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be। कंपेयर करना है सिल्वर को और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना आएगा, सिल्वर कितना दिया है वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम ये बना देंगे। एक तरफ सिल्वर, एक तरफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैन आई से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। बट ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया, ऑक्सीजन का तो वॉल्यूम की टर्म्स में वैल्यू दी है। आपको क्या वैल्यू दी है, 5600 ml ऑफ O2 इज गिवन ना। तो यहां पे इक्विवेलेंट्स के लिए वेट नहीं चाहिए। कैन आई राइट हियर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो आपको वेट ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना है उसको हम x कर देते हैं, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट है 108 एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम 5600 ml दिया है। ये O2 का वॉल्यूम, O2 का ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेंगे, 5600 ml इज गिवन, और 5.6 लीटर इक्विवेलेंट वेट होता है। तो 5.6 लीटर को भी 5600 ml लिख सकते हैं। एज अ रिजल्ट आपके क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो 108 ग्राम ही बन रहा है। एक्स का वैल्यू 108 ग्राम आ गया। देखो फिर से इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे कैलकुलेट किए। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर एटम के केस में तो वैलेंसी होती है, ठीक है। तो सिल्वर एटम है ना, तो 108, उसका वैलेंसी 1, तो सिल्वर का तो इक्विवेलेंट वेट भी 108 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 108। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये सिल्वर था। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 कैसे निकाला, आपने ये देखना है कि 8 ग्राम जो है इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, 8 ग्राम। तो कैन आई से 1 मोल मीन्स 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ O2 occupies volume is equal to 22400 ml at STP। दिस इज द STP वॉल्यूम फॉर 1 मोल। 1 मोल O2 है 32 ग्राम का। आपको 8 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी 22400 अपॉन 32 इंटू 8, you will get 5600 ml as the equivalent volume at STP। करेक्ट। तो ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है वो है 5600 ml। यही हमने यहाँ पे यूज कर दिया था इक्वेशन में। इक्विवेलेंट वॉल्यूम में 56 यूज किया और गिवन वॉल्यूम भी 56 था। योर आंसर कम्स आउट टू बी 108 ग्राम। 108 ग्राम का मीनिंग है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। ये इंपॉर्टेंट था। फैराडे लॉ में एक का वेट और एक का वॉल्यूम दिया है। जब दोनों का ही वेट देते हैं फिर तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। यहाँ एक का वेट और एक का वॉल्यूम गिवन था। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, अनदर क्वेश्चन ऑन फैराडे लॉज। 1 Faraday of charge was passed through the electrolytic cells placed in series containing solutions of Ag plus, Na plus 2 and chromium plus 3 respectively. The amount of silver and chromium deposited will be। कितना सिल्वर और कितना क्रोमियम, कितना निकल डिपॉजिट होगा, ये आपको टेबल बना के दिया हुआ है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। 1 Faraday of charge is passed, so keep in mind सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पहले हम देख लेते हैं।
108 अपॉन 1 ना, मॉलिक्यूलर वेट 108 और वैलेंसी भी 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी 108। अब आती है बात सिल्वर के बाद निकल की। निकल है 59 एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, निकल का वैलेंसी तो 2 होता है ना, एज अ रिजल्ट ये 29.5 ग्राम आ जाएगा। थर्ड कंपोनेंट इज क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक वेट है 52, वैलेंसी 3 होती है, क्रोमियम प्लस 3 होता है, तो ये आ गया 17.3 ग्राम। ये सबके इक्विवेलेंट वेट हमने लिख दिए पहले। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will deposit how much? It will deposit equal to 1 equivalent weight. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू ऑल द 3, सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक में Ag प्लस, एक में निकल प्लस 2 और एक में क्रोमियम प्लस 3। तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, कितना क्रोमियम, कितना निकल, तो 1 फैराडे से डिपॉजिट होता है 1 इक्विवेलेंट वेट। हेंस 1 फैराडे अगर Ag प्लस में पास करेंगे तो आपको 108 ग्राम मिलेगा। अगर यही 1 फैराडे आप पास करोगे निकल प्लस 2 में तो आपको मिलेगा 59 अपॉन 2, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो कि 29.5 ग्राम है। और अगर यही 1 फैराडे हमने क्रोमियम के सैंपल में पास किया तो 52 अपॉन 3, क्रोमियम का वैलेंसी प्लस 3 होता है, तो यू विल गेट 17.3 ग्राम। यही आंसर्स आए क्योंकि ये तीनों के इक्विवेलेंट वेट हैं। 1 फैराडे से हमेशा इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है, ये मेन चीज है। फैराडे के क्वेश्चन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल ऑलवेज डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट वेट। तो ऑप्शंस पे आते हैं। इन द फर्स्ट ऑप्शन इट इज रिटन 108, सिल्वर तो सब में ही 108 दिया है, और आपके पास निकल दिया 29.5, क्रोमियम 17.3, ऑल द वैल्यूज आर रिटन इन ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आंसर है। 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट वेट आता है। 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे इज 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 26। 26 क्वेश्चन क्या है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू। लिमिटिंग मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमें एक तो अमोनियम आयन का वैल्यू पता होना चाहिए और एक हाइड्रोक्साइड का पता होना चाहिए। ये दोनों मिल जाएं अगर तो आपका काम चल जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बट अमोनियम का कहीं वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया, हाइड्रोक्साइड का भी नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, ये याद रखना है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, देखो अगर हम अमोनियम क्लोराइड ले ले, अमोनियम क्लोराइड लेने से आपको क्या क्या मिलेगा, अमोनियम प्लस क्लोराइड, बट हर बारी लैम्डा इंफिनिटी लिखना है। अगर सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तभी ये ट्रू होता है, तभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, वरना तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अटैच्ड रहेगा तो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, उससे अमोनियम आ जाएगा, बट क्लोराइड तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ चाहिए अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड, ये चाहिए हमें। तो एनीवे क्लोराइड को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद OH भी तो अभी नहीं मिला, OH आप क्या करो, OH आप ले लो NaOH से। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमें जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं वो है अमोनियम क्लोराइड एंड NaOH। लेट्स हैव NaOH, तो Na प्लस अलग, हाइड्रोक्साइड अलग। ठीक है, अब ना तो हमें क्लोराइड चाहिए था और ना ही सोडियम चाहिए था, तो हम NaCl को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। NaCl at infinite dilution is made up of Na plus separately, chloride separately। यही तो कॉल्विश लॉ था, लॉ ने हमें यही तो सिखाया था कि अगर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है
तब आप अपने सॉल्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। कैटायन अलग मूव करता है बीकर में, एनायन अलग मूव करता है। अलग अलग मूव करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसका मतलब है उनकी कंडक्टेंस इंडिपेंडेंट है। सोडियम की कंडक्टेंस अलग, क्लोराइड की अलग। ठीक है, सो हमारा रिजल्ट क्या बना, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड ले लो, उसके बाद आप इसमें ऐड करो NaOH। ऐसा करने से आपको अमोनियम और हाइड्रोक्साइड दोनों मिल गए, बट NaCl एक्स्ट्रा आ गया है, वो रिमूव करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी कंडक्टेंस हम माइनस कर देंगे। गॉट इट? सो दिस इंफॉर्मेशन इज obtained from Kohlrausch's law। Kohlrausch law ने हमें बताया कि किसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कमिंग टू द ऑप्शंस नाउ, अमोनियम क्लोराइड एंड NaOH added, NaCl subtracted, आंसर इज ऑप्शन ए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया था आपको कैलकुलेट करने के लिए, और जो अदर सॉल्ट्स थे वो थे अमोनियम क्लोराइड, NaOH, NaCl। ये तीनों सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो लॉ हमें यही तो सिखाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम स्ट्रॉन्ग की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज, Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, उसमें आपने आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी डिटेल देखते हैं Fe3O4 की। Fe3O4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। ठीक है, ये है फेरस, FeO के अंदर फेरस आयन है तो ये है फेरस ऑक्साइड। दूसरे के अंदर Fe+3 है तो वो हो गया फेरिक ऑक्साइड। तो Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है इन दोनों का, फेरस और फेरिक का। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब आप 3x ले लो सीधा, 3x + 4 × -2, ऑक्सीजन का -2, the value of x will come out to be 8/3। 8/3 means your answer is option C। अगर इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो 8 + 2 है, यहाँ पे +2 है आयरन, और ये +3 है। बट हमें एवरेज निकालना था। एवरेज का मतलब कॉमन तीनों का ऊपर कितना चार्ज है, तीन आयरन्स के ऊपर कितना चार्ज है, 8/3। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट आता है 28। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट इन एसिड सॉल्यूशन इज KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसमें एसिडिक मीडियम दिया है और आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। उसके लिए केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। पर मैंगनेट आयन इन एसिडिक मीडियम विल कैप्चर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा Mn+2 and 4 वाटर। गॉट इट? तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर सकते थे। अगर मैंगनीज कैलकुलेट करोगे पर मैंगनेट में तो +7 आएगा। और प्रोडक्ट याद होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में इसका क्या प्रोडक्ट होता है, ये Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रेड्यूस होता है। 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज दिख रहा है। गॉट इट? तो अब इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो 158 है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। 158 कैसे आया, पोटेशियम 39 एंड मैंगनीज 55। 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4 से हम सीधा 64 लिख देते हैं। ये बन रहा है 158, यू डिवाइडेड बाय 5। n फैक्टर यहाँ 5 आ रहा है। n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। सो 31.6 ग्राम आंसर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। गॉट इट? So B option is the answer, 31.6 grams.
राइट। और बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट अलग होता है और न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, एसिडिक में अलग होता है। तो जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं पता ना, तब तक आप इक्विवेलेंट वेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हर बार इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर चाहिए, बट एन फैक्टर से पहले प्रोडक्ट पता होगा तभी तो एन फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा। तो वी कैन मेंशन हियर इन बेसिक मीडियम, एक दो बातें याद रखनी है। अगर एसिडिक की जगह बेसिक मीडियम आ जाए तो फिर एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि पर मैंगनेट फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेसिक मीडियम में और कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव में, बस एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में ये क्या करता है, MnO4 नेगेटिव विल कैप्चर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम MnO2। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 7 और ये 4, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। यहाँ था 7 and 6। सो इक्विवेलेंट वेट्स आर टू बी लर्न्ड इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 29। द क्वेश्चन इज अ गैस X at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing mixture of Y negative 1 molar and Z negative 1 molar. Reduction potential of Z is more than Y is more than X. Then options are Y will oxidize X and not Z, or Y will oxidize Z and not X, and so on. देखिए, हमें ऑक्सीडेशन पे कमेंट करना है। एक गैस X है, उसको बबल कर देते हैं इन द बीकर ऑफ Y and Z। ये एक बीकर है, उसमें Y प्रेजेंट है, दूसरे बीकर में कोई केमिकल Z प्रेजेंट है। ये है Y नेगेटिव, ये है Z नेगेटिव, दोनों के अंदर X को फिल किया। ठीक है, तो X को ऐड करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। पहले रिडक्शन पोटेंशियल्स का इंफॉर्मेशन गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Z इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन X, ये हमें गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल Z का हाईएस्ट है, इट मींस फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Z का लो होगा। Z हैज अ लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन Y एंड देन X का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इट मींस जो X है, X will oxidize, it will oxidize Y as well as Z। ये तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा X, और जो Y है, Y will oxidize X only, not Z। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यहाँ पे X का है। X तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज करेगा और Z किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तीनों में से Z का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीस्ट है, लीस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Z का। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शंस देखी जाएं, Y will oxidize X, हमारा ये रिजल्ट आया, Y will oxidize X and not Z। Let's come to the option। Y किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सिर्फ X को, Z को नहीं कर पाएगा। Z will not be oxidized। क्लियर? तो ए ऑप्शन आंसर है। इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू देखना है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए सारी ऑप्शन कह रही है कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑल दी ऑप्शंस आर ऑन ऑक्सीडेशन। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लो, फिर आप देख सकते हो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 30। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। 4 रिएक्शन दिए, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स रिस्पेक्टिवली। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो रिड्यूस जल्दी होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स reduced। ये बात हमें याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है। तो आप चेक करिए रिएक्शंस के अंदर ये सिचुएशन है, हमारे पास 4 रिएक्शन दिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है? कैन आई से 2.85 इज द हाई बिगेस्ट वैल्यू।
उसके बाद तो छोटी हो रही है 1.36, 1.06 एंड 0.53। सबसे बड़ा वैल्यू है F2 का। सो F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है। अब एक तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था, एक बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये बात याद रखनी है। रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाने पड़ेंगे। 4 कंपोनेंट आपको दिए हैं, मैंने सारे रिएक्शन को अब रिवर्स कर देना है। पहला F2 का था ना, तो F नेगेटिव विल गिव F2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को ऑपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, और वैल्यू भी फिर चेंज होगी, 2.87 की जगह होगी -2.87 वोल्ट। फिर आता है क्लोरीन का, क्लोराइड लिया और Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, E नॉट वैल्यू इज 1.36, ये भी नेगेटिव कर दी। 1.36 था पॉजिटिव में, रिडक्शन पोटेंशियल था ना, हमने रिएक्शन को भी रिवर्स कर दिया और वैल्यू को भी रिवर्स कर दिया। ब्रोमीन के लिए वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो 1.08 होता है, पर अब हम कर देंगे -1.08। ये बन गया Br2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देन यू हैव I नेगेटिव से बना I2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, E नॉट इज -0.54 वोल्ट। सारी वैल्यूज रिवर्स कर दी है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना है, जिसका हमें क्या ढूंढना है, हमें रिड्यूसिंग नेचर ढूंढना है। रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा है, उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन चारों में से बिगेस्ट वैल्यू है -0.54। देयरफॉर बेस्ट reducing agent is I नेगेटिव। आयोडाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपको F2 लिखना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, I नेगेटिव लिखना है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में। बी ऑप्शन इज द आंसर। F2 and I negative, these are the answers. Let's come to the next now, question 31. Next question is, which of the following electrolyte solution has the least specific conductance? Specific conductance कापा होता है, और options हैं 2 normal, 0.00, 2 normal, 0.02 and 0.2। मतलब कि सबसे डाइल्यूट सोल्यूशन तो बी ऑप्शन में गिवन है और सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन गिवन है ए ऑप्शन में। तो कापा के लिए ये याद रखना है, जो कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाते हैं। कापा इज लीस्ट फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैन आई से डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स लेस नंबर ऑफ आयन्स, लेस आयन्स होंगे तो कापा भी कम हो जाएगा, क्योंकि कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन्स। कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा कहते हैं। कापा बेटा होता है इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयन्स हैं वो जो कंडक्ट करेंगे उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हमारे पास बी के अंदर सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कापा होगा वो लीस्ट होगा। आपको लीस्ट के लिए आंसर करना था। गॉट इट? सो बी इज द करेक्ट आंसर। कापा डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयन्स। नंबर ऑफ आयन्स आर लेस इन 0.002 normal solution, hence its kappa is least. Coming to the next, question 32. The compound that can work both as an oxidizing as well as a reducing agent is, आपको दे रखे हैं KMnO4, H2SO4, बेरियम पेरोक्साइड एंड H2O2। दोनों काम करने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करना है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करना है। सो कीप इन माइंड, whenever an element is in the intermediate oxidation state, तब वो दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करेगा।
पहले हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। KMnO4 में मैंगनीज आएगा 7, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर आएगा +6, बेरियम पर ऑक्साइड है ये आएगा बेरियम +2 एंड H2O2 में ऑक्सीजन -1 आएगा। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है, KMnO4 में जो मैंगनीज +7 है, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मैंगनीज, +7 हाईएस्ट है। जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा ना, तो वो फिर रेड्यूस हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +7 की जगह +6, +3, +4 ऐसे आएगा, बट वो फर्दर लॉस नहीं कर सकता। मैंगनीज के वैलेंस शेल में ही 7 इलेक्ट्रॉन है, सब लूज हो चुके हैं, +7 मतलब ऑल ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट, अब और लूज नहीं होगा। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी सब लूज हो चुके हैं। बेरियम के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वो भी लूज हो चुके हैं। तो H2O2 जो है ये दोनों काम करता है, ये ऑक्सीजन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और ये ऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑक्साइड में -2 चार्ज है और O2 के अंदर चार्ज 0 है, ये दोनों काम करेगा। -1 से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 बन गया। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ये खुद H2O2 रेड्यूस्ड, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो H2O2 ऑक्सीडाइज, जब H2O2 ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो ये खुद रेड्यूसिंग एजेंट है, जब ये रेड्यूस हो जाएगी तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों काम H2O2 कर सकता है। याद रखना है, जब भी एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इंटरमीडिएट मतलब ना तो हाईएस्ट और ना ही लोएस्ट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी शो कर सकता है, गेन भी शो कर सकता है, हेंस इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज reducing agent. D option is the answer. Coming to the next now, question 33. For a spontaneous reaction, the delta G equilibrium constant and E naught will be. 3 चीजों का आंसर करना है, डेल्टा G का, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और फिर E naught से। All 3 are to be answered. Reaction spontaneous है, ये तो हम सबको मालूम है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस डेल्टा जी इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट के लिए भी बात करेंगे। ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है जब जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये 2 पॉइंट्स तो बार बार आते हैं। डेल्टा जी डिपेंड करता है ई नॉट के ऊपर, -NF ई नॉट सेल, ये रिलेशन है। तो अगर ई नॉट पॉजिटिव होगा डेल्टा जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अब के के लिए बोलना है, हमें के पे भी कमेंट करना है। रिलेशन क्या है डेल्टा जी और के में? इट इज -2.303 nRT log ऑफ के, ये रिलेशन है। तो के को हम लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 बोलेंगे। देखो फाइनल आंसर हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। फाइनल आंसर नेगेटिव तभी आएगा इफ के इज बिगर देन 1। लॉग का वैल्यू जो के अंदर है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। के अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉग के इज पॉजिटिव। अगर के 1 से कम हो गया, लेट्स से कि ये है log ऑफ 1, तब तो 0 हो जाता है। log ऑफ हम लेते हैं 2, तो ये पॉजिटिव हो गया 0.3010। अब मुझे चाहिए log ऑफ -2, तो इसको लिख सकते हैं log 2 into 10 raised to power -1। Can it be written as log 2 plus log of 10 raised to power -1? log 2 का वैल्यू है 0.30 और ये है -1, क्योंकि log 10 1 होता है। तो नेगेटिव आ गया कि नहीं? ये कितना आ गया? इट इज -0.699। तो जब जब वैल्यू के का लेस देन 1 होगा तो फिर लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लॉग नेगेटिव आ गया, अगर ये लॉग के नेगेटिव हो गया फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कमेंट करना है। स्पॉन्टेनियस के लिए जब आप कमेंट करते हो तो आपका आंसर है डेल्टा जी नेगेटिव, के ग्रेटर देन 1 एंड ई नॉट सेल पॉजिटिव। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव एंड सेल ईएमएफ पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस नहीं होगा अगर सेल की ईएमएफ नेगेटिव आ गई, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेल काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और कितनी प्रोड्यूस होती है, 1.10 वोल्ट। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 34। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मोलर कंडक्टिविटी दिया है आपको बेरियम का, क्लोराइड का, these are the values given. What is the lambda m infinity for barium chloride for the same dilution? Infinite dilution के ऊपर आप Colruyt law अप्लाई कर सकते हो। You are given BaCl2, you can break it into barium and chloride. बेरियम को अलग किया और क्लोराइड को अलग किया, क्लोराइड के 2 आयन्स आए। Let's see the values. Values क्या क्या है? हमारे पास बेरियम है 127.32, ये मोलर कंडक्टिविटी है, और क्लोराइड का 76.32। बोथ ऑफ देम आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 127.32 प्लस 152.68। लेट्स ऐड देम अप, ऐड करके 280.00। 280.00 मतलब 280, ए ऑप्शन हमारा आंसर। और मोलर कंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज गिवन। कापा वैल्यू गिवन है एंड द रेजिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 55 ओम। The cell constant will be specific conductance symbol kappa, value है 0.012 ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस दिया है 55 ओम एंड सेल कांस्टेंट जो कि लेंथ अपॉन एरिया होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन यूज होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो आपके पास 0.012 वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया था 0.012, कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/55 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, 55 और 0.012, ये आपके पास आ जाएगा 0.66। यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ऑप्शन बी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। और याद रखने की बात ये थी कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये सी जो मैंने लिखा है ये कंडक्टेंस है, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, ये कंडक्टेंस, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 36। पैसेज ऑफ 10800 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट deposited 2.977 gram of metal with atomic mass 106.4. The charge on the metal cation is, कैटायन का चार्ज निकालना है एंड हमें फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है ये। हमें क्या क्या गिवन है, 10800 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको गिवन है और मेटल का वेट भी दिया है 2.977 ग्राम और एटॉमिक मास भी दिया है। So let's write by Faraday's first law, we can say M is equal to ZIT. Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ECE which is called as electrochemical equivalent. It is electrochemical equivalent. तो अब हम क्या करेंगे, M को लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट।
कीप इन माइंड ये जो Z होता है ये इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। तो हमने इसको कर दिया E अपॉन F। अब इक्विवेलेंट वेट तो क्वेश्चन में नहीं दिया बट एटॉमिक वेट दिया है। कैन आई राइट इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख दे एटॉमिक वेट अपॉन क्या कैलकुलेट करना था, चार्ज। एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज इज इक्विवेलेंट वेट, IT न्यूमरेटर में, फैराडे कांस्टेंट डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज द मास गिवन 2.977। मेटल का मास है 2.977। चार्ज आपको कैलकुलेट करना है मेटल का। एटॉमिक मास देखो 106.4, एटॉमिक मास की जगह 106.4 और I इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे 10800। 10800 ये कूलम है, कूलम में चार्ज है और 96500 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। ये हम चार्ज कैलकुलेट कर, हमने क्या यूज किया क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू IT। I इंटू टी अलग से नहीं दिया था हमें, करंट एम्पियर में और टाइम सेकंड्स में तो दिया ही नहीं क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने ये दिया है चार्ज इन कूलम 10800 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब हम चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा इक्वल टू +4। आफ्टर कैलकुलेशन +4 विल बी लेफ्ट, चार्ज को लेफ्ट पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और +4 आएगा। +4 का मतलब हमारा आंसर ऑप्शन ए। गॉट इट। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ आपने मेटल के ऊपर कितना चार्ज है वो भी कैलकुलेट कर लिया। मेटल कौन सा है ये नहीं बताया गया, मेटल का बस हमें मास बता दिया गया था 106.4। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता नहीं है क्योंकि वैलेंसी पता नहीं है। वैलेंसी कहो या चार्ज करो कह दो, वो आपको नहीं पता, वो आपने कैलकुलेट किया थ्रू द क्वेश्चन। ये +4 आता है, हेंस यू कैन नाउ कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। अगर किसी को इक्विवेलेंट वेट चाहिए इस मेटल का तो इक्विवेलेंट वेट विल बी 106.4 अपॉन 4 विच इज नथिंग बट एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और यू कैन कॉल इट चार्ज, क्योंकि मेटल आयन है तो चार्ज भी कह देते हैं, राइट। So this was an important question. Coming to the next question 37. How many coulombs are required for the oxidation of 1 mole of H2O2 to O2? H2O2 को ऑक्सीडाइज करना है, H2O2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, -1 से 0 बनेगी, बट 2 ऑक्सीजन है H2O2 में। यहाँ पे ये मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि H2O2 में -1 चार्ज है। ये देखो हम अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का x इक्वल टू 0, तो x आ गया -1। ठीक है, तो -1 से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, बट कीप इन माइंड H2O2 में 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। यू विल राइट हेयर 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 मोल H2O2 हो तो हमें 1 फैराडे का चार्ज चाहिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ चार्ज ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 मोल H2O2 गिवन है, बट हमें 1 की जगह डबल करना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एक H2O2 के मॉलिक्यूल में से, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और अगर 1 मोल H2O2 होगा, 1 मोल H2O2 लूजेस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके ये O2 बनेगी। तो 2 इंटू 96500 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 193,000, which can be written as 1.93 into 10 raised to power 5 coulomb. Let's come to the options now. Options में ये पहला है 9300, दूसरे में ये मल्टीप्लाई का साइन है। Your answer becomes 1.93 into 10 raised to power 5. Got it? आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 है नास्ट इक्वेशन के ऊपर। EMF ऑफ द सेल टाइटेनियम चेंजिंग टू टाइटेनियम +1 एंड कॉपर +2 से कॉपर, एंड द EMF वैल्यू इज गिवन 0.83 एंड फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल
विच कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सेल ईएमएफ पहले दे दिया, फिर सेल ईएमएफ को इंक्रीज करना है, तो क्या हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें इस टाइटेनियम का या कॉपर का या दोनों का इंक्रीज करें या टाइटेनियम का इंक्रीज करें, ये क्वेश्चन है। देखिए सेल रिएक्शन लिखते हैं पहले, टाइटेनियम चेंजिंग टू टाइटेनियम +1 एंड इट इज 0.001 एंड सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर +2 विच इज 0.01 एंड देन कॉपर। इसका ईएमएफ हमें दे रखा है 0.83 वोल्ट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ईएमएफ को इंक्रीज करना है। नर्स्ट इक्वेशन से हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं एवरी टाइम, ई नॉट -0.059/n log ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ टाइटेनियम जो है वो ऊपर आएगा, क्योंकि सेल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे कौन जाता है वो देखिए, टाइटेनियम विल, ये सेल रिएक्शन बनेगा, टाइटेनियम एंड कॉपर +2 विल कंबाइन एंड प्रोडक्ट विल बी टाइटेनियम एंड कॉपर। टाइटेनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किया, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट पे लिखा होता है वो एनोड होता है, जो राइट पे लिखा होता है वो कैथोड होता है। अब आप जब प्रोडक्ट लिखोगे, जब नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो प्रोडक्ट है ये टाइटेनियम +2 न्यूमरेटर में जाए। अब सेल का ईएमएफ इंक्रीज करना है, तो देखो याद रखना है, जब जब सेल का ईएमएफ इंक्रीज करना है तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करिए, कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमने टाइटेनियम का इंक्रीज कर दिया, लेट्स से कि मैंने टाइटेनियम को बढ़ा दिया, टाइटेनियम इंक्रीज करा तो ये पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा। इफ दिस टर्म इज बिगर देन ई सेल विल डिक्रीज, क्योंकि ई सेल में से आप कुछ बड़ा नंबर माइनस करोगे। टाइटेनियम प्लस कॉन्सेंट्रेशन if it is increased then E cell will decrease, but if copper +2 concentration is increased then E cell will also increase। देखिए कॉपर +2 को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो लॉग वाले टर्म में जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे ना, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो ये टर्म छोटी हो गई, ये सारी जो मैंने ऐसे लिख रखी ये छोटा हो जाएगा, तो फिर ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये जनरल स्टेटमेंट है, इफ कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ई सेल इंक्रीज होगा, बट अगर एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी गई, इफ एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड देन ई सेल विल डिक्रीज। गॉट इट? तो हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था हाउ विल यू इंक्रीज द सेल ईएमएफ, हमारा आंसर है कि हम कॉपर +2 के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से भी वो प्रूव हो रहा है, लॉग के अंदर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो नर्स्ट इक्वेशन से भी प्रूव हो रहा है। अदरवाइज हम जनरल लर्न कर लें तो बेटर रहता है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ईएमएफ कम हो जाएगी, कैथोड का बढ़ाया तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 39। Out of copper, silver, iron and zinc, the metal which can displace all others from their salt solution is। 4 मेटल्स दी हैं और कौन सी मेटल है जो बाकी सबको सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। कहने का मतलब अगर हमें जिंक लिया, जिंक और कॉपर +2 लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा जिंक +2 एंड कॉपर, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर ली। अब मुझे जिंक को कंपेयर करना है सिल्वर के साथ, अब मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन सिल्वर का ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag+1 ले लिया, तो ये बन जाएगा जिंक +2 एंड Ag सॉलिड। क्लियर? उसके बाद अगर आप लेते हो आयरन, जिंक +Fe, आयरन +2 ले लो, तो ये बन जाएगा जिंक +2 एंड Fe। हर बारी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बाकी मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का जो है वो सबसे कम है, जिंक सीरीज में ऊपर आता है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक +2 टू जिंक
ई नॉट वैल्यू है -0.76 वोल्ट। फिर ई नॉट वैल्यू आया कॉपर का, कॉपर इज 0.34 with a positive sign. Then you have silver, Ag plus से Ag, it is plus 0.80 volt. अब रह गया आयरन, E naught of Fe plus 2 to Fe, it is minus 0.44 volt. सबके E naught, ये कॉमन मेटल्स हैं, इनके E naught याद रखने, ये क्वेश्चन में नहीं दिए जाते. We are supposed to learn for them. जिंक का, कॉपर, सिल्वर एंड Fe. तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट तो सिल्वर का है. तो कैन आई से जिंक हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा. हर रिएक्शन में देख लो, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी सारी मेटल्स रिड्यूस हो रही हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा. तो बाय द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका ये क्वेश्चन हो सकता है. वैल्यूज तो किसी की नहीं थी, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन नहीं है. वी आर सपोज्ड टू नो दैट, देन ओनली क्वेश्चन कैन बी डन. गॉट इट? सो इट इज हाईएस्ट फॉर जिंक. जो जिंक है सबके सॉल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा. कहने का मतलब जिंक मेटल ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर बाहर निकाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर बाहर कर दिया, फेरस सल्फेट को स्पॉइल कर दिया, आयरन मेटल बाहर निकाल दी, डिस्प्लेस कर दिया. क्वेश्चन यही था ना, कौन डिस्प्लेस करता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 40. द स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर गिवन 0.68 volt, -2.54 and -0.50. सबके आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल्स या कह लो रिड्यूसिंग पावर पे हमें आंसर करना है. रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ने खुद तो ऑक्सीडाइज होना है, रिड्यूसिंग एजेंट ने खुद तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाएंगे. ये तो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन. आप इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे. ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने ए का, तो 0.68 की जगह -0.68 हो गया. पहले 0.68 था. सबके साइन बदल दिए जाएंगे. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब बी का देखते हैं, +2.54. फिर सी का देखो, ये है +0.50. सबके आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स बना दिए. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट आ रहा है बी का, बी की वैल्यू हाईएस्ट है. बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो बी होगा, क्योंकि बी ने जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाना है. बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए. रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ B is highest, then C, then A. Hence, reducing power or the nature to act as reducing agent वो B की ऊपर है, फिर C की, फिर A. So ये भी क्वेश्चन EMF सीरीज के ऊपर लिंक्ड है. EMF सीरीज की एप्लीकेशंस के में आता है ये कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसे ढूंढना है. Compare their reduction potentials or oxidation potentials. Coming to the next. When the electrolysis of silver sulfate was carried out by platinum electrodes, silver sulfate का electrolysis करते हैं और platinum electrodes को use करके किया. So what is the amount of silver we have to calculate at cathode? जबकि एनोड पे ऑक्सीजन आ रही है, सिल्वर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. Ag2S कैथोड पे ये प्रोवाइड करता है सिल्वर और एनोड पे प्रोवाइड कर रहा है O2. अमाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन है. फैराडेज सेकेंड लॉ हम यूज करेंगे. फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इस लॉ के अकॉर्डिंग आप दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दोगे. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सिल्वर के लिए हम लिखेंगे W ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इधर भी आप वेट लोगे, दोनों ऑक्सीजन के भी लीटर या मिलीलीटर नहीं दिए, दोनों का वेट दिया, ऑक्सीजन का भी वेट। इक्विवेलेंट वेट दोनों के पता होने चाहिए और आपको 1.6 ग्राम ऑक्सीजन दी गई है एंड सिल्वर का वेट हमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट है 108 फॉर सिल्वर एंड ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। ये रिलेशन याद रखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो सिल्वर 108 अपॉन 1 मतलब सिल्वर का तो 108 हो गया, बट अगर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है देन इट इज 16 अपॉन 2, ऑक्सीजन का 8 ग्राम होता है। गॉट इट? तो हमारा आंसर बनता है आफ्टर कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 21.6 ग्राम। 21.6 ग्राम का मतलब है सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 42. Question 42 is 1 liter of 1 molar copper sulfate solution is electrolyzed. After passing 2 Faraday of electricity, the molarity of the solution will be. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि कैथोड पे आएगा कॉपर और एनोड पे आएगी O2। सल्फेट नहीं आता, कभी भी सल्फेट से सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो कॉपर सल्फेट की जगह जो वाटर में से हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑलवेज कॉपर एट कैथोड एंड O2 एट एनोड। तो कॉपर का आपको रिएक्शन लिखना है, कॉपर प्लस 2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम कॉपर। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया। 2 फैराडे से क्या बनेगा, ये 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 विल रिक्वायर 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि 1 मोल कॉपर मेटल बन जाए। ठीक है, तो 1 मोल कॉपर मेटल बनाने के लिए आपने रिएक्शन स्टार्ट किया और बिगनिंग में 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन दिया है। 1 लीटर 1 मोलर कॉपर सल्फेट इज गिवन टू अस। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, याद रखना है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी है 1, वॉल्यूम है 1, तो 1 मोल आपके पास कॉपर सल्फेट था। क्वेश्चन ने सीधा सीधा नहीं बोला कि 1 मोल कॉपर सल्फेट दिया है, वो बोला जा रहा है 1 लीटर सोल्यूशन दिया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट का। इट मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया। 1 मोल आपके पास अगर कॉपर सल्फेट है तो कैन आई से 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 1 कॉपर प्लस 2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल कॉपर प्लस 2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सारा का सारा जो मोलर सोल्यूशन था सारा इलेक्ट्रोलाइज हो गया, सब कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट होके कॉपर बन गया। हेंस copper sulfate left behind is 0 molar. No copper sulfate is left behind. सारा जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था उतना ही दिया गया, हमें 2 फैराडे चाहिए, 2 फैराडे ही गिवन है। एज अ रिजल्ट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी 0, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सारा कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया कॉपर में और O2 में। Let's come to the next now. Question number 43. 43 है EMF of the following concentration cell at 25 degree Celsius is. इसका EMF कैलकुलेट करना है। It is a concentration cell. Concentration cell में सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है दोनों तरफ। एनोड पे है सिल्वर नाइट्रेट, कैथोड पे है सिल्वर नाइट्रेट, सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या करते हैं, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई सेल इज 0, क्योंकि ई सेल में तो दोनों चीजें ही सिल्वर है।
ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो दोनों तरफ ही सिल्वर की वैल्यू है, तो ई सेल हो गया, ई नॉट सेल इज 0। ई नॉट सेल आप कैसे निकालते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हेंस ये तो 0.8 माइनस 0.8, सिल्वर का वैल्यू 0.8 होता है। तो अब हमें ई नस्ट इक्वेशन में पहले अप्लाई करते हैं, इसमें फिर कंडीशन लगा देंगे ई नॉट 0। ई सेल इज ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ये है आपका, ये प्रोडक्ट साइड पे जाएगा ना, इसको C1 लेते हैं, इसको C2 लेते हैं, जब सेल रिएक्शन लिखेंगे तो C1 प्रोडक्ट पे जाएगा, तो C1 अपॉन C2, प्रोडक्ट मैंने न्यूमरेटर में रखा। हेंस ई सेल इज इक्वल टू, ये तो है 0 माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग C1 बाय C2। कैन इट बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू, इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, ये माइनस वाले को मैंने पॉजिटिव बना दिया, लॉग के अंदर टर्म को ऑपोजिट कर दिया। ये आपकी इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ई सेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद भी कर सकते हो। कंडीशन ये लगाई है हमने कि जब जब कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा उसका ई नॉट सेल 0 आएगा। अब अप्लाई करिए, जो जो वैल्यूज दी है, 0.059 दिया है, N1 होगा क्योंकि सिल्वर ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल हमने C2 रखा है, 0.05 उसकी वैल्यू, दिस इज 0.05, दिस इज 0.01, तो ये बनेगा 0.059 log ऑफ 5 अपॉन 1, मतलब log 5 चाहिए। log 5 का वैल्यू होता है 0.699। 0.699 याद रखने, छोटे नंबर्स के लिए log वैल्यूज दी नहीं जाती हैं, यू आर सपोज टू नो देम। log 2, log 3 ऐसे नंबर्स के लिए log टेबल नहीं दिया जाता, तो ये आ जाएगा 0.0414। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.0414 वोल्ट विल कम, दिस इज द सेल EMF फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रेशन सेल, हेंस आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, 0.0414 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। Coming to the next now, question 44. At 18 degrees Celsius, the mobilities of NH4 plus perchlorate ion are given. दोनों के mobilities given हैं। At infinite dilution, the equivalent conductance of ammonium chlorate will be. Ammonium chlorate आपका salt है, इसका हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, बट अमोनियम और क्लोरेट के कंडक्टेंस नहीं, उनकी मोबिलिटीज दी हैं। कैन आई राइट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोरेट इज इक्वल टू द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ परक्लोरेट आयन। अब ये कंडक्टेंस आपको नहीं दिए गए हैं, याद रखिए, कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोबिलिटी एंड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रिप्लेस्ड बाय द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट F। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर अमोनियम क्लोरेट दोनों के लिए हम F इंटू U प्लस एंड U माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट के लिए आ जाएगा। U है मोबिलिटी का सिंबल, F है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल, कैटायन आपका अमोनियम और एनायन परक्लोरेट। द वैल्यूज आर, ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया, कैटायन की मोबिलिटी देख सकते हैं, ये दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, दूसरा भी दे रखा है, सो लेट्स राइट द वैल्यूज, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, द नेक्स्ट वन इज गिवन 5.7 इंटू 10⁻⁻⁴। दोनों वैल्यूज के बाद ये आपका आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा 118.69। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अंदर आयोनिक मोबिलिटीज तो नहीं दी थी आपको, आयोनिक मोबिलिटी की जगह आयोनिक मोबिलिटी दिया था, हमें आयन का कंडक्टेंस चाहिए था, कंडक्टेंस नहीं दिया है, तो हम फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यू अप्लाई दिस रिलेशनशिप एंड गेट द वैल्यू एंड यूनिट्स आएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये यूनिट्स हैं, ये ओम के ऊपर -1 है, इक्विवेलेंट के ऊपर भी -1 है, यूनिट्स आर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45,
What is the standard potential of titanium plus 3 to titanium? You are to calculate the standard potential of titanium plus 3 to titanium and some reactions are given. So हम reaction लिखते हैं titanium plus 3, टाइटेनियम नहीं है, थैलियम है, Tl है ना, इट इज थैलियम. इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम Tl. टाइटेनियम तो Ti होता है, दिस इज Tl. फिर टाइटेनियम प्लस 3 से जब टाइटेनियम प्लस 1 बनता है तो वो वैल्यू हमें गिवन है 1.26 वोल्ट. दिस इज गिवन. देन titanium plus 1 will gain 1 electron, it will become thallium, not titanium, and E naught is minus 0.336. Both are given in volts. याद रखना है, whenever a metal is in different oxidation state, आप E naught को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको डेल्टा जी बनाना है. तो फर्स्ट रिएक्शन Tl plus 3 will gain 3 electrons and it will become Tl. इसका डेल्टा जी 1 बन गया इक्वल टू माइनस 3f इंटू एक्स. इसका x वैल्यू ले लिया मैंने, E3 आपको E1 कैलकुलेट करना है, इसको x ले लिया. फर्स्ट रिएक्शन का E1. सेकेंड का हम सिंबल, सेकेंड रिएक्शन के लिए हम सिंबल E2 और डेल्टा G2 कर देंगे. तो अब है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, डेल्टा G2 it is equal to minus 2 into f into 1.26. Got it? Third number पे you have Tl plus 1, it will gain 1 electron, it will become Tl0. Delta G3 is minus f into minus 0.336. Be careful for the negative sign. अब आपको फर्स्ट इक्वेशन चाहिए सेकंड और थर्ड से. हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करते हैं ना, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. डेल्टा G1 विल बी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3. एंड फर्स्ट केस में क्या इक्वेशन की वैल्यू थी, फर्स्ट में थी माइनस 3f इंटू एक्स, ये सेकेंड की और ये थर्ड की. We can write minus 3f into x is equal to minus, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव साइन है, you will get 2.52 into f. फर्दर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.336 into f. f को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस f हम कॉमन ले अगर तो ये बनता है 3x ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस f हर जगह से कॉमन ले लिया, माइनस f कॉमन लेके 0.336 विद द नेगेटिव साइन. गॉट इट? तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे. तो अब आप x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, x विल कम आउट टू बी 0.728 वोल्ट. 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो 0.728 वोल्ट इज कमिंग. दिस इज फॉर द रिएक्शन ऑफ थैलियम प्लस 3 चेंजिंग टू थैलियम 0. तो आंसर क्या बनता है, 0.0728 मीन्स बी ऑप्शन इज द आंसर. क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डेल्टा जी बनाएंगे पहले, फिर लास्ट में ई नॉट कैलकुलेट करेंगे. ये एक्स जो है ये ई नॉट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट. इस तरीके से कैलकुलेट. सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. वी हैव लर्नड अबाउट द डेल्टा जी कैलकुलेशन, how E naught can be calculated for a given reaction with the help of delta G values. Apart from that, ionic mobilities are given, how to change it to the conductance value. Then conductance of salt AB will be sum of conductance of cation plus conductance of an ion. Relation between molar conductance and equivalent conductance. If ionic conductance is given, how to find out the equivalent conductance of the salt. And questions were there on reducing nature, on oxidizing nature. And that is all about the chapter. Hope you are taking the benefits of our lectures. Keep enjoying. Thank you and bye bye.